Good morning, everyone. This is the next video of our chapter number 5, that is natural vegetation. In last video, we have done about the mountain forest. One topic of the mountain forest is remaining, that is South Indian or Southern mountain forest. As we know that in mountain forest we have two type of the forest, two categories. Actually, we divided in India. First one is the northern Indian mountain forest and second one is the southern Indian mountain forest. So today we are going to discuss about the southern mountain forest. Okay, एक बार देख लीजिए. In mountain forest we have two categories, or we divided mountain forest into two part in India, that is North Indian mountain forest and South Indian mountain forest. In North Indian mountain forest comprises the Himalayan belt, Himalayan three mountain ranges of Himalaya and the northeastern hills of India. Okay, and today we are going to discuss about the second category, that is southern mountain forest. Okay, southern mountain forest comprises Vindhya range and Satpura range. Okay, so this is Vindhyachal range in the middle of India, and this is Satpura. Okay, and second one is the Western Ghat and Nilgiri hills. Okay, Palani hills, this is a part of Eastern Ghat. So southern mountain forest comprises Vindhyachal range, Satpura range, Western Ghat, Nilgiri hills and Palani hills. Okay, this is the region of tropical climatic conditions. So we found in southern mountain forest tropical climatic condition, and the average elevation of the southern mountain forest is only 1500, whereas the average elevation of the North Indian mountain forest 4000 to 5000 meter. Okay, so average elevation of the South Indian mountain forest is the 1500 meter. Of the south mountain forest is the 1500 meter, जबकि हम देखें तो नॉर्थ इंडियन माउंटेन फॉरेस्ट का जो एवरेज एलिवेशन है वो क्या रहेगा, 4000 टू 5000 मीटर हाइट के भी माउंटेन आपको मिलेंगे. सो वी हैव टू रीजन इन द साउथ माउंटेन फॉरेस्ट. दिस इज वेस्टर्न घाट. अब वेस्टर्न घाट में आप देखेंगे लोअर रीजन एंड हायर रीजन. ओके, सो लोअर रीजन इज द लीवर्ड साइड ऑफ द साउथ वेस्टर्न मानसून. दिस इज द लीवर्ड साइड. आप देखिए इसको, इससे समझिए. This is the southern India and here we have Western Ghat. Okay, in the interior of India we have leeward side of the Western Ghat. ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये माउंटेन रेंज है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड है इसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड. ठीक है, हियर वी रिसीव लेस रेनफॉल एंड द हायर रीजन जो होगा वो इसका टॉप रीजन होगा, जो इसके फ्रंट एलिवेशन जिसको हम बोलेंगे यहाँ फ्रंट में, हियर वी रिसीव मोर रेनफॉल. सो एवरेज रेनफॉल इन द फ्रंट रीजन 300 मीटर, बट इन द लीवर्ड साइड वी रिसीव ओनली 100 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल. So we receive less rainfall in the leeward side, so this is the lower region. Okay, so in lower region we have moist and dry deciduous forest. Moist and dry deciduous forest. But in the higher region where we receive more than 200 centimeter rainfall or high rainfall, so in this region we have evergreen forest. Evergreen forest. Okay, so in the leeward side of the Western Ghat we have less rainfall, so we found moist and dry deciduous forest. But in the higher region where we receive high rainfall,
approximate 200 to 300 meter, there we found evergreen forest. So in the moist deciduous forest, we have plants or the vegetation type, teak, like teak, sal, sesame, etc. So these are the categories of vegetation which we found in the moist and dry deciduous forest. Okay, but in evergreen forest मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी वेजिटेशन आपको यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलती है. इन लास्ट वी हैव इंफॉर्मेशन दैट साउथ इंडियन फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज द सोलाज in the Nilgiri hills. Okay, नीलगिरी हिल्स रीजन में साउथ इंडियन जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोलाज बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज लिटोरल फॉरेस्ट और स्वेम्प्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे वो रामसर कन्वेंशन के बारे में देखेंगे. सो देखिए लिटोरल फॉरेस्ट क्या होता है. So last category of the Indian forest, Indian vegetation is the littoral forest and the swamps. Okay, this littoral forest and the swamps cover 70% of the paddy vegetation. जो पैडी का जो कल्टीवेशन होता है, सॉरी पैडी कल्टीवेशन. So it covers 70% of the paddy cultivation in India, and total area of the littoral forest in India 3.9 million hectare. तो इंडिया के अंदर जो लिटोरल फॉरेस्ट है और स्वेम्स है वो 3.9 मिलियन हेक्टेयर रीजन के अंदर मिलते हैं और टोटल 70% पैडी कल्टीवेशन इंडिया का ये कवर करते हैं. ओके, we have divided total littoral or swamp forest into 8 categories in India, throughout the India. First one is the reservoir of the South India. तो साउथ इंडिया के अंदर जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, जो डेक्कन प्लेट्यू है, इसके अंदर जितने भी रिजर्वियर्स मिल रहे हैं इंक्लूडिंग लेगून्स ऑफ केरला एंड अदर वेटलैंड, दिस इज द फर्स्ट रीजन. ओके, सो वी हैव डिवाइडेड टोटल 8 categories. फर्स्ट वन इज़ द रिजर्वियर ऑफ द साउथ इंडिया. तो जितने भी रिजर्वियर आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे रिवर से बने हुए, वो टोटल रिजर्वियर एंड लेगून्स, जितनी भी लेगून्स हैं, मोस्टली लेगून्स आर फाउंड इन द केरला. ओके, सो इंक्लूडिंग लेगून्स एंड अदर वेटलैंड्स, दिस इज द फर्स्ट रीजन. एंड सेकेंड वन इज़ द सेलाइन रीजन. आपको पता होगा मोस्ट जो इंडिया के अंदर जो सेलाइन रीजन है वो राजस्थान का रीजन है. ठीक है, तो सांबर लेक इज़ द लार्जेस्ट सेलाइन लेक ऑफ इंडिया, साल्ट लेक ऑफ इंडिया. So saline expanses of Rajasthan and Gujarat and Gulf of Kutch. This is the second category or second division of littoral and the swamp forest. And third one is the freshwater lake of the Rajasthan. ये एक अलग रीजन होगा. ये ईस्टर्न राजस्थान का पार्ट है, गुजरात से लेके मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग ईस्टर्न राजस्थान. हियर वी फाउंड लॉट ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स. बहुत सी रिवर का भी यहाँ पे ओरिजिन होता है फ्रॉम मध्य प्रदेश जो एंटर करती है इन राजस्थान, लाइक ए वेरी इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज चंबल रिवर है. तो यहाँ पर जितनी भी लेक, फ्रेश वाटर लेक मिलेंगे, दिस इज द थर्ड रीजन. ओके, तो तीसरा कैटेगरी हमारी क्या होगी, फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ द राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश. दिस इज द ईस्टर्न राजस्थान मेनली. एंड फोर्थ कैटेगरी इज द डेल्टा वेटलैंड्स एंड लेगून्स ऑफ द ईस्टर्न इंडिया. सो दिस इज द पार्ट ऑफ उड़ीसा एक्चुअली. ये यहाँ पर इस रीजन के अंदर आपको जितने भी लेगून्स मिलेंगे, लाइक चिल्का लेक. ओके, कौन सी लेक मिल रही है यहाँ पे, चिल्का लेक चिल्का. ये भी एक बैकिश वाटर लेक है. सो डेल्टा वेटलैंड्स एंड द लेगून्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट पे जो भी लेगून्स और वेटलैंड आपको मिल रही है, दैट इज द फोर्थ डिवीजन. एंड फिफ्थ वन इज द फ्रेश वाटर एंड मर्शेज ऑफ द गंगेटिक रिवर. अब 2 कैटेगरी आपको और मिलेंगी. फिफ्थ कैटेगरी आपको मिलेगी रिवर गंगा की. तो दिस इज द फिफ्थ कैटेगरी. यहाँ पर इस रीजन में जितने भी आपको स्वैम्स और मार्सी लैंड मिलेगी, दैट कम्स अंडर द फ्रेश वाटर और मर्शेज ऑफ द गंगा.
एंड सिक्स्थ कैटेगरी जो होगी आपकी वो ब्रह्मपुत्र रिवर से बन जाएगी। सो स्वेम्स एंड द मार्सी लैंड ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन वेटलैंड्स जो भी होंगी वो किस कैटेगरी में आएंगी? सिक्स्थ कैटेगरी में। सेवन्थ कैटेगरी जो आपकी है लेक्स एंड द रिवर्स, तो कश्मीर रीजन आपका रह जाता है, तो एक कश्मीर रीजन को भी कवर करते हैं। तो लेक्स एंड द रिवर्स ऑफ द कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, तो कश्मीर हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी भी लेक्स एंड रिवर्स होंगी वो सेवन्थ कैटेगरी में आएंगी। अब देखिए पूरा इंडिया कवर हो चुका है, सिर्फ दो रीजन बचे हैं हमारे पास, वो होंगे हमारे आइलैंड्स लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, और कुछ जो कोस्टल रीजन है वो भी कवर करेंगे। तो इन कोस्टल रीजन वी हैव मैंग्रोव टाइप वेजिटेशन। कौन सी वेजिटेशन आपको मिलेगी? मैंग्रोव टाइप वेजिटेशन। मैंग्रोव को भी हम डिस्कस करेंगे कि मैंग्रोव में किस टाइप की वेजिटेशन आपको मिलती है। तो देखिए मेनली मैंग्रोव्स आर फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार एंड द सुंदरबन डेल्टा ऑफ द वेस्ट बंगाल। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो है वो वेस्ट बंगाल से लेके आपका बांग्लादेश तक का रीजन जो है कोस्टल एरिया उसको कवर करता है। दिस इज द होमलैंड ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, सो द मैंग्रोव्स एंड अदर वेटलैंड्स जो आपके लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार में जितनी भी आपको अदर वेटलैंड्स मिलती हैं वो किस कैटेगरी में आएंगी? एट्थ कैटेगरी में आएंगी। जनरली हम देखते हैं कि मैंग्रोव जो है वो कवर करता है जितना भी कोस्टल रीजन है इंडिया का। इंडिया का कोस्टल रीजन कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया। तो देखिए ये यहाँ पे आपको कृष्णा, गोदावरी, कावेरी इनका जो डेल्टा रीजन है यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है? मैंग्रोव मिलता है, बट मेनली इट इज़ फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार एंड द वेस्ट बंगाल, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। वेस्टर्न कोस्टल रीजन पे भी आपको मैंग्रोव्स मिलते हैं, गुजरात के अंदर भी मैंग्रोव्स मिलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में भी मैंग्रोव्स मिलते हैं। तो थ्रू आउट द कोस्टल लाइन आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। सो दिस इज द एट्थ कैटेगरी ऑफ द लिटोरल फॉरेस्ट एंड द स्वैम्प्स। ओके, नेक्स्ट इसी से हमें कुछ टॉपिक हैं उनको डिस्कस करना है, लाइक लिटोरल फॉरेस्ट एंड द स्वैम्प्स। ये जो है ये वेटलैंड रीजन जो है इंडिया का उसको कंप्राइज कर रहे होते हैं। तो वेटलैंड जितनी भी हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड दे आर प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड अंडर ए ट्रीटी दैट इज रामसर कन्वेंशन। कौन सी कन्वेंशन हुई थी? रामसर, RAMSAR, रामसर कन्वेंशन। So all the wetlands, almost all the wetlands, important wetlands, they are covered and conserved under the Ramsar Convention. So this is the treaty which was held in the 1971. So इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो होगा हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट होगा। मैंग्रोव भी इंपॉर्टेंट है तो इनको भी देख लेते हैं, व्हाट इज मैंग्रोव्स। ओके, सो देखिए व्हाट इज रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन वाज हेल्ड इन it was adopted in 1971 and came into force in 1975। तो इसको अडॉप्ट किया गया था 1971 में, और जो इसने वर्क स्टार्ट किया था फ्रॉम 1975 से स्टार्ट किया था। इट वॉज ए ट्रीटी ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ एंड कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स। सो रामसर कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स। ओके, Ramsar is a city, or Ramsar is located in the Iran. Ramsar is a city of Iran. So Ramsar is a Iranian city where Ramsar Convention was held in 1971. Ramsar Convention is a intergovernmental treaty. क्या है? Intergovernmental treaty है, ठीक है, गवर्नमेंट्स के बीच में। तो intergovernmental treaty which promotes, ये क्या देता है हमें? 3 थिंग्स हैं, 3 चीज़ें हैं जो देखिए हमें ये बताता है। फर्स्ट वन इज़ द नेशनल एक्शंस। ओके, कि हमें क्या करना चाहिए, किसी भी कंट्री को वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए क्या क्या एक्शंस लेने हैं, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना है। जो ये जो गाइडलाइंस होंगी वो हमें कहाँ से मिल रही है? रामसर कन्वेंशन से मिल रही है अबाउट वेटलैंड्स। ओके, सेकंड वन, इट प्रमोट्स द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। यदि कोई ऐसी वेटलैंड है जो बाउंड्री शेयर कर रही है कंट्रीज़ की, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। कंट्री के इंटीरियर में कोई यदि आपकी वेटलैंड्स हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो फंड्स हैं वो हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन से
उनसे मिलते हैं. सो इट प्रमोट्स द इंटरनेशनल कोऑपरेशन. एंड लास्ट वन इज द इट प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड्स. किस तरीके से हमें उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना है, वेटलैंड्स को कंजर्व करते हुए, उसको प्रोटेक्ट करते हुए. सो इट प्रोवाइड थ्री थिंग्स. फर्स्ट वन इज द नेशनल एक्शन, सेकेंड इंटरनेशनल cooperation, and third one it provide guidelines for the wise use of the wetlands. Okay, on 2nd Feb we celebrate the World Wetland Day. Okay, 2nd फरवरी को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे, to promote or to aware the citizens about the wetlands, importance of the wetlands. Okay, इंडिया के अंदर अंटिल टोटल 37 टोटल जो वेटलैंड है इंडिया में मोर देन 37 वेटलैंड्स हैं, बट टोटल 37 वेटलैंड्स कवर्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन. तो रामसर कन्वेंशन की जो लिस्ट है उसमें मोर देन 2300 वेटलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड दे आर कवर्ड. सो टोटल 2300 के लगभग जो टोटल वेटलैंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको ये कवर करता है रामसर कन्वेंशन. बट टोटल 37 वेटलैंड्स आर लिस्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन फ्रॉम इंडिया. ओके, एंड टू फ्रॉम राजस्थान. राजस्थान की कितनी वेटलैंड्स हैं जो रामसर कन्वेंशन में लिस्टेड हैं? दे आर 2. फर्स्ट वन इज द केवलादेव. केवलादेव नेशनल पार्क located in Bharatpur district of Rajasthan, and second one is the Sambar Lake. Sambar Lake is located in the Jaipur district of the Rajasthan. So Sambar and the Kevladev, there are two wetlands which are listed under the Ramsar Convention list. Okay, सो दिस इज द रामसर कन्वेंशन. आप समझ गए होंगे रामसर कन्वेंशन क्या है. रामसर कन्वेंशन एक ट्रीटी थी, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, जो 1971 में साइन हुई थी. ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स. टोटल मोर देन 2300 wetlands are listed in the Ramsar Convention list. Okay, it is the intergovernmental treaty. It provides three bases. First, three things. First one is the national actions, what we do to conserve the wetlands. Okay, and intergovernmental cooperation, international cooperation को ये promote करता है. and last ये guideline provide कराता है for the wise use of the wetlands. Okay, टोटल 37 इंडिया की जो वेटलैंड्स हैं दे आर लिस्टेड इन द रामसर कन्वेंशन लिस्ट, एंड 2 फ्रॉम द राजस्थान से 2 हैं, दैट इज केवलादेव नेशनल पार्क एंड द सांबर लेक. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है दैट इज मैंग्रोव्स. लास्ट देख लीजिए मैंग्रोव्स क्या होते हैं. मैंग्रोव्स, टोटल मैंग्रोव्स आर फाउंड इन इंडिया इन द एरिया 66,740 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन है जिसमें मैंग्रोव्स मिलते हैं इन इंडिया. दे कवर 7% ऑफ द वर्ल्ड. टोटल वर्ल्ड में जितने मैंग्रोव्स मिलते हैं उसका 7% इंडिया के अंदर मिल रहे हैं. ओके, साल्ट टॉलरेंस, रिमार्केबल कैपेसिटी होती है इन मैंग्रोव्स फॉर द साल्ट टॉलरेंस. साल्ट सेलाइन वाटर जो होता है उसमें भी ये ग्रो कर जाते हैं, तो इनकी एक कैपेसिटी है, रिमार्केबल कैपेसिटी है, दैट इज साल्ट टॉलरेंस. ओके, दे आर लिटोरल प्लांट्स. कैसे प्लांट्स होते हैं? लिटोरल प्लांट्स होते हैं, लिटोरल टाइप वेजिटेशन होती है. दे आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. कौन से रीजन में मिलेंगे? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ये मिल रहे होते हैं. इन इंडिया मेन रीजन कौन कौन से इंडिया के? एक तो सुंदरबन डेल्टा है. कौन सा रीजन है? सुंदरबन डेल्टा. एंड सेकंड वन इज द अंडमान निकोबार. और इसके अलावा टोटल जो हमारी कोस्टल लाइन है इंडिया की, वहाँ पर मैंग्रोव्स मिल रहे हैं. ओके, तो मैंग्रोव्स इंडिया के अंदर कौन कौन से मेन रीजन है? फर्स्ट वन इज द सुंदरबन डेल्टा एंड सेकंड वन इज द अंडमान एंड निकोबार. थर्ड देखें तो हम थ्रू आउट द कोस्टल लाइन के पास में इंडिया के पास क्या मिल रहे हैं? मैंग्रोव्स मिलते हैं, लाइक कावेरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, महानदी डेल्टा, यहाँ पर भी आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे. वो एक और कैरेक्टरिस्टिक है वो देखिए, दैट इज न्यूमेटाफोर्स. न्यूमेटाफोर्स क्या होती हैं? दे आर ब्लाइंड रूट्स. ठीक है, तो न्यूमेटाफोर्स पाई जाती हैं किसमें? मैंग्रोव्स में मिलती हैं. दे आर ब्लाइंड रूट्स. ये क्या कर रहे हैं?
लाइक कोई मैंग्रोव ट्री है, साल्ट टॉलरेंस इसके अंदर होता है, तो सेलाइन वाटर में भी ये ग्रो करते हैं, मेनली सेलाइन वाटर में ही मिलते हैं मैंग्रोव्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो सेलाइन वाटर में आपको कम मिलेगा। तो इस रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनकी जो रूट्स जो हैं वो इस तरीके से मूव करती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं और वाटर लेवल जो है उससे थोड़ा सा बाहर निकली हुई होती हैं। सो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और टिश्यूज़ तक अपने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब लो टाइड रीजन होगा, जब लो टाइड आएगा तो उस टाइम पे ये जो है इनकी रूट्स जो हैं ये थोड़ा सा ओपन स्पेस से रेस्पिरेशन करेंगी और यहाँ से अपने टिश्यूज़ तक ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो दिस टाइप ऑफ द रूट्स इज नोन एज द न्यूमेटोफोर्स, ब्लाइंड रूट हम इनको बोलते हैं। साल्ट सेलाइन जो वाटर है उसमें भी ये ग्रो करते हैं, सो दे हैव साल्ट टॉलरेंस, रिमार्केबल कैपेसिटी ऑफ साल्ट टॉलरेंस। Total area where we found mangrove forest in India is the 6,740 kilometer, that is the 7% of the total world mangrove forest. And these are the littoral plants, they are found in the tropical and the subtropical region. और लास्ट में आपको ये बता देना है कि they are found main region where we found the mangrove forest in India are Sundarban Delta in West Bengal and Andaman and Nicobar and throughout the coastal line of the India, ठीक है। यहाँ तक हमारी जो टोटल फॉरेस्ट कैटेगरी थी उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।